Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. Today's topic is the maps. Learning topics: map, uses of maps, colors on the map, directions, scale, signs or symbols. Map. A map is a drawing of a part or the whole of the Earth's surface. It is drawn on a flat surface or paper. Maps can be drawn to show more details of a smaller area or lesser details of a bigger area. We can draw the map of a classroom, a school, a city, a state, a country or the world. तो मैप आपका एक वो फिनोमेना है जिसमें आप छोटी सी छोटी जगह को बड़ा करके उसकी डिटेलिंग दिखा सकते हैं या फिर किसी भी बड़ी चीज को छोटी जगह पर ड्रॉ करके कम डिटेल्स के साथ उसको डिपिक्ट कर सकते हैं. द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी. द पीपल हु मेक मैप्स आर नोन एज कार्टोग्राफर्स. जो मैप को बनाते हैं उनको कार्टोग्राफर्स कहा जाता है और इस पूरे मैप मेकिंग के प्रोसेस को कार्टोग्राफी कहा जाता है. Uses of maps. Maps provide us a variety of information. Maps show the location of the continents, countries and cities. Maps show mountains, plateaus, plains, river, valleys and water bodies. Maps can also show the distribution of rainfall, forests, crops, grasslands, mines, etc. तो एक मैप से आपको अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन मिलती है. अलग अलग लोकेशंस का पता चलता है, कहाँ पे कितने ज्यादा ग्रासलैंड्स हैं, कहाँ पे कितने ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, फॉरेस्ट है, माइंस हैं, कहाँ पे कितनी रेनफॉल होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक मैप से पता चल सकती है. Maps are easier to carry and handle as they can be printed in books, rolled or folded. However, maps are not as accurate as a globe because the earth is spherical whereas the maps are flat. They cannot show the exact shape of the earth. जो maps होते हैं वो बड़ी आसानी से आप कैरी कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, बुक्स में बना सकते हैं, लेकिन एक ग्लोब के कंपैरिजन में एक मैप ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है क्योंकि हमारी अर्थ की शेप स्फेरिकल है और एक मैप फ्लैट होता है. Globes are most suitable for representing the earth as a whole. Maps are more suitable for representing parts of the earth such as continents and countries. तो अगर आपको आपकी अर्थ को एज अ होल दिखाना है तो ग्लोब ज़्यादा एक्यूरेट होता है और आपको अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, ये सारी चीज़ें दिखानी है तो मैप ज़्यादा एक्यूरेट होता है. A book of maps is called an atlas. To understand the continents of a map or globe, we must be able to read it. Various signs, symbols and colors used in a map to show lakes, rivers, cities, etc. make up what is called the language of maps. तो maps की अपनी एक लैंग्वेज होती है. अलग अलग रिवर्स को, लेक्स को, फॉरेस्ट को दिखाने के लिए अलग अलग टाइप के साइंस और सिंबल्स का यूज करा जाता है जो कि हमें पढ़ना आना चाहिए. ऐसी एक किताब जिसमें अलग अलग जगहों के मैप्स होते हैं उसको एटलस कहा जाता है. Colors on the map. All maps follow a common scheme of colors. They give useful information on a map. The seas, oceans, lakes and big rivers are shown in blue. Sometimes the pale blue color is used to show the areas where the seas and oceans are shallow. Deep blue is used to show the areas where the seas and oceans are deep. Green color is used to show the low-lying areas or plains. Yellow and light brown are used to show lands higher than the lowlands or the plateaus. Deep browns show highlands, generally mountains. तो आपका जो मैप पे अलग अलग टाइप का कलर फॉर्मेशन होता है या यूज करा जाता है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड एक ही पैटर्न फॉलो होता है. जैसे कि अगर आपको कोई शैलो सी दिखाना है तो आप लाइट ब्लू कलर का यूज करेंगे. अगर आपको डीप सी या ओशियन दिखाना है तो वहां पे आप डार्क ब्लू कलर का यूज करते हैं. उसी तरीके से लो लाइंग रीजन्स या लो प्लेटो वाले जो रीजन्स होते हैं वो लाइट ब्राउन से कलर्ड होते हैं. जो हाईलैंड या माउंटेन्स होते हैं वो डार्क ब्राउन से कलर होते हैं. देयर इज यूजुअली अ की इन अ कॉर्नर ऑफ द मैप. द की टेल्स अस एग्जैक्टली हाउ डीप एंड हाई द एरियाज इन ईच कलर आर. यूजुअली आपको मैप के साइड में कीज दिखाई देंगे जो आपको बताते हैं कि किस कलर का क्या मतलब है. Directions. A knowledge of directions is very important in the study of maps. There are 4 main directions: north, south, east and west. The directions shown on a map are always the same. तो आपको किसी भी जगह का पता लगाने के लिए या मैप को स्टडी करने के लिए लोकेशंस का पता होना बहुत ज़रूरी होता है. मेन आपके 4 लोकेशंस होते हैं यानी कि डायरेक्शंस होते हैं जैसे कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट.
Maps in books and atlases always show north at the top of the page. Once we know the direction of north on a map, it becomes easy to find the other three directions. तो यूजुअली आपके बुक्स में, मैप्स में, एटलसेस में जो नॉर्थ होता है वो टॉप साइड पे होता है, और एक बार आपको पता चल गया कि नॉर्थ कहाँ पे है तो बाकी के 3 डायरेक्शंस को आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं. साउथ इज द डायरेक्शन ऑपोजिट टू नॉर्थ, सो इट इज एट द बॉटम ऑफ द मैप. द वेस्ट इज टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन रीडिंग द मैप एंड द ईस्ट is to the right. नॉर्थ के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आपका साउथ होता है नीचे की तरफ, उसके बाद आपका इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे आपका वेस्ट होता है और राइट हैंड साइड पे आपका ईस्ट होता है जो बंदा मैप को पढ़ रहा होता है. Look at the map of India and write the names of directions and sub-directions of the states. List the names of 2 states in each direction. तो आपको आपका इंडिया का मैप देखना है, चारों डायरेक्शंस, और उसके बाद जो बाकी के सब डायरेक्शंस होते हैं उनके नाम लिखने हैं, और हर एक डायरेक्शन से आपको 2 स्टेट्स के नाम लिखने हैं. Sometimes we also need to show places which lie between the north and the west or the south and the west. So there are 4 sub-directions. The northeast is just halfway between the north and the east. The northwest is halfway between the north and the west. The southwest is halfway between the south and the west. And the southeast lies halfway between the south and the east. तो आपके 4 डायरेक्शंस के अलावा 4 सब डायरेक्शंस होते हैं जो आपको अलग अलग जगहों के बारे में बताते हैं. जैसे कि अगर आपको नॉर्थ और वेस्ट के बीच का कोई एरिया बताना है तो आप नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का बताना है तो नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, एंड सिमिलरली बाकी के चारों डायरेक्शंस भी इसी तरीके से डिटरमाइन करे जाते हैं. Knowledge corner. The knowledge of directions is very important for astronauts in the space, sailors at the sea and pilots in the air. तो आपका ये जो directions का knowledge है ये एयरक्राफ्ट को जो फ्लाई करते हैं पायलट उनके लिए इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोनॉट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ तक कि जो शिप्स में सेलर्स जाते हैं उनके लिए भी डायरेक्शंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. स्केल. टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ अ मैप वी मस्ट नो इट्स स्केल. एवरी मैप इज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू अ स्केल. द स्केल ऑफ अ मैप helps us to measure the exact distance between 2 places shown on the map and its relation to the actual distance on the Earth's surface. तो एक स्केल जो होता है वो आपको 2 जगहों के बीच का इक्वल डिस्टेंस पता लगाने में हेल्प करता है. A. Measure points 1 and 2 with a divider. B. Place the divider on the scale of the map. C. The scale shows that the distance is 2 centimeters on the map. D. If 1 centimeter on the map is equals to 100 kilometers on the ground, the distance between points 1 and 2 is equals to 200 kilometers. For drawing the map of a smaller area, example a classroom, the scale may be 1 centimeter is equals to 1 meter on the ground. तो आपको scales mentioned होते हैं. अगर आपको 2 points यानी कि point 1 और point 2 के बीच का distance 2 centimeters दे रखा है और scale में लिखा हुआ है कि 1 centimeter is equals to 100 किलोमीटर्स, तो 2 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 200 किलोमीटर. तो इसकी मदद से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि 2 पॉइंट्स में कितनी ज्यादा डिस्टेंस है. साइंस और सिंबल्स. द स्पेस अवेलेबल ऑन द मैप इज लिमिटेड. ऑल द फीचर्स ऑफ द लैंड कैन नॉट बी शोन इन देयर एक्चुअल शेप इन द लिमिटेड स्पेस अवेलेबल ऑन द मैप. Therefore, map makers or cartographers use some standard symbols which are used everywhere. तो आपको जैसे पता ही है कि आपका जो मैप होता है वो लिमिटेड स्पेस में बनाया जाता है, तो सारे लैंड फॉर्म्स, ओशियंस को दिखाना इजी नहीं होता. इसीलिए जो कार्टोग्राफर्स होते हैं वो सिंबल्स का यूज करते हैं ताकि लिमिटेड एरिया में आपको ज्यादा से ज्यादा जगह के बारे में बता पाएं. Different symbols are drawn to show rivers, cities, railways, roadways, lakes, boundaries, etc. Understanding these symbols is essential for map reading. Most of the maps have a key to tell what the symbols stand for. तो आपकी lakes, rivers, dams, landforms, oceans, ये सारी चीज़ों को बताने के लिए आपकी अलग अलग सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और आपको इन सिंबल्स का मतलब पता होना चाहिए मैप रीडिंग के लिए. Maps are our friends. It is important to learn the language of maps to understand them. Maps हमारे दोस्त हैं और उनकी लैंग्वेज समझने के लिए उनकी लैंग्वेज हमें सीखना जरूरी होता है.
बाउंड्री, रोड, रेलवे, वाटर सोर्स, अदर्स। तो नीचे आपको ये जो सिंबल दे रखे हैं ये आपको अलग अलग चीजों के बारे में बताते हैं जो आपको मैप्स में देखने में आसानी हो जाती है। मैप्स मे बी ऑफ मेनी टाइप्स। ए, द फिजिकल मैप्स, दे शो द फिजिकल और नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स एटसेट्रा। तो आपके अलग अलग टाइप के मैप्स हो सकते हैं। सबसे पहले आपका फिजिकल मैप आ जाता है, जितनी भी आपकी नेचुरल चीजें होती हैं जैसे माउंटेन्स हो गया, लेक्स हो गई, रिवर्स हो गई, फिजिकल मैप में आपको वो सारी चीजें बताई जाती हैं। B, the political maps. These maps show the political boundaries of each country or state along with the capitals and other important cities. Political map में आपकी कंट्री, जो आपकी नेबरिंग कंट्रीज है, उनकी बाउंड्री लाइंस, स्टेट्स और उनकी बाउंड्री लाइंस, स्टेट्स और उनके कैपिटल्स, उनकी इंपॉर्टेंट सिटीज आपको पॉलिटिकल मैप में दिखाई जाती हैं। C, special maps. These maps give us the specific information such as distribution of rainfall, population, minerals, क्रॉप्स एटसेट्रा ऑफ एन एरिया। और कुछ आपके स्पेशल मैप्स होते हैं जिसमें आपको रेनफॉल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है आपकी कंट्री में या स्टेट्स में वो बताए जाते हैं, क्रॉप्स के बारे में बताया जाता है, मिनरल्स के बारे में बताया जाता है। तो जिन जिन चीज़ों में आपको ये सब चीज़ें बताई जाती हैं वो आपके स्पेशल या फिर स्पेसिफिक मैप्स होते हैं। Now I know. A map is a drawing of a part or the whole of the Earth's surface on a flat surface. A book of maps is called an atlas. All maps follow a common scheme of colors. The four main directions are north, south, east and west. The scale of map tells us how large an area of the earth it shows. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमें पता चला है कि मैप जो होता है वो पूरी अर्थ की ड्राइंग होती है एक फ्लैट सरफेस पे। आपको अलग अलग डायरेक्शंस के बारे में पता चला, 4 मेन डायरेक्शंस और 4 सब डायरेक्शंस। उसके अलावा आपको पता चला कि मैप्स में अलग अलग कलर्स का यूज होता है और जो आपका मैप की पूरी एक किताब होती है उसको एटलस कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो आपको खुद से करनी है।